So dear students, today again I have come with the topic synthesis, and we have already added two sentences by using participle, two or more than two sentences by using participles, adjectives, and now today we'll see how can we add two sentences or more than two sentences by using nominative absolute. Nominative absolute. First you have to understand what is nominative absolute. तो हम देखेंगे nominative absolute का meaning क्या है. First of all, nominative, if we take the single word, we'll see that nominative means subject, and Hindi you can say karta. Okay, and then we have the word absolute. Absolute means to make something free. Absolute means to make something free. It means free. Understand? It means, the whole meaning is to make the subject free. So, nominative absolute, it means to make the subject free. Now, free from what? किससे हम free करें? So, we know this fact that subject is always, dominated by finite verb. Okay, so if the finite verb is there, subject has to be there. It is essential, subject to be there because finite verb is there. तो अगर finite verb है, subject को होना ही पड़ेगा. And if the finite verb is singular, subject would be singular. If the finite verb is plural, it is essential that subject should be plural. So subject is always dominated by finite verb. We all know. Understand? And in simple sentence, there is one finite verb. This also, this is also a kind of fact that we know. So what should we do? How can we make the subject free from the finite verb? अब हम क्या करें कि finite verb को अगर हम non-finite पे change कर दें. If we change the finite verb into non-finite verb, then there would be no, what should I say? No boundation of the finite verb on the subject, and subject would be free. Understand? अगर हम क्या करें कि subject को वही रहने दें और finite verb की जगह हम non-finite use करें, then subject would become free, है ना? There would be no influence of finite verb on the subject. Subject को non-finite पे हम change कर देंगे. And you all know that there are three kinds of non-finite verb. They are gerund, participle, and infinitive. So I have uploaded these, non-finite verb video. You must watch them, to know it in a better way. So what we will do today is we will make the subject free. How can we make the subject free? By changing the non-finite finite verb into non-finite verb. And let's see how we can do it. So first of all, I told you that nominative means subject and absolute means free. So when subject becomes free from the sentence, suppose there is a sentence, okay, two or more than two sentences are there. So if we write one sentence and another sentence, subject can be, sentence can be 1, 2 or 3. So suppose I've taken two sentences, and we know that sentence always start with subject, okay, then verb, and then object or complement. Okay, so it can be object or complement. In second sentence we also see the same thing. There is subject, then there is verb, and there is object or complement. Okay, so if two sentences are there and these verbs are, two verbs are there, they are, these verbs are finite verb and subject is influenced by finite verb. Understand? Subject is always influenced by finite verb. So if we change this finite verb into non-finite verb, then we see that even if the subject is there, it would be free. It would be absolute. There would be no impact of the subject on the rest of the sentences. Understand?
तो अगर क्या करें, हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट को ये जो वर्ब है उससे बंधा हुआ है, तो अगर हम क्या करेंगे कि इस वर्ब को, फाइनाइट वर्ब को अगर हम नॉन फाइनाइट पे चेंज कर दें, तो हम देखेंगे कि इस जो है सब्जेक्ट का जो है प्रभाव, जो वर्ब का प्रभाव है सब्जेक्ट पर नहीं पड़ेगा। और जब वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट पर नहीं पड़ेगा तो सब्जेक्ट फ्री हो जाएगा। बाकी के जो सेंटेंस सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस का पार्ट है उससे सब्जेक्ट से कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो what is nominative absolute. I told you nominative absolute means when we make the subject free from the sentences, you know, from the sentence or from the sentences, it is called nominative absolute. It means subject becomes free from the rest of the sentences. So how can we do? अच्छा, कैसे हमें पता चलेगा? How can we know the fact that we have to, you know, combine two or more than two sentences by using only nominative absolute construction? अभी जो आपको सिंथेसिस करने के लिए जब आएगा तो दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस दिए रहेंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा? जैसे भाई पार्टिसिपल में आपको पता होना चाहिए था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो सब्जेक्ट होते हैं, है ना, और दोनों सेम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होता है, और काम एक काम के साथ साथ या एक काम के तुरंत खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है। ये पार्टिसिपल का है। नाउ if you have learned participle in a proper way, it would be very easy for you to understand what is nominative absolute construction, because you know it is something like what should I say, participle, present participle. So how can we identify that we have to use nominative absolute for the sentence to add? अब दो सेंटेंस को ऐड करने के लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम कैसे करेंगे, कब करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल three things you take. Three things are there which you have to take in your mind. You have to remember. It would be better if you note it down somewhere. First thing is that subject of the two sentences should be different. Understand? If two sentences are there and you have to combine these two sentences to make one simple sentence, remember one thing, that subject should be different. But in present participle, what we do? Present participle subject, it remains the same. But in nominative absolute, subject should be different. Keep this thing in mind. Okay, first thing. Second thing is that in two sentences, there should be a causal relationship between the two sentences. So what is the meaning of causal relationship? Causal relationship means one sentence should show the cause and other sentence should show the result. एक सेंटेंस में कारण होना चाहिए, दूसरे सेंटेंस में आपको उसका परिणाम या रिजल्ट होना चाहिए। सपोज अगर हमने कहा कि आज छुट्टी थी, हम स्कूल नहीं गए, you know, today was holiday, we didn't go to school. So today was holiday, this is the reason, okay, and we didn't go to school, this is the result. Understand? So karan and parinam. So there should be a causal relationship between two sentences. You just keep these two things in mind. First thing, I again repeat that subject should be different. Second thing is that there should be a causal relationship between two sentences. And third thing is that the sentence, you know, which is showing the cause or not result, the sentence which is showing the cause, only that part of the sentence we will change, not the other one. The part which is showing the result which will remain the same. Only the part which is showing the cause, we have to change that part only.
तो जो पार्ट दो सेंटेंस है, एक में कारण दिखाता है, एक में परिणाम दिखाता है, जो कारण दिखाता है हम उसी सेंटेंस को चेंज करेंगे. नाउ सपोज वी वांट टू चेंज टू सेंटेंसेस. तो अभी जो है हम कैसे चेंज करेंगे? हमें पार्टिसिपल का यूज करना है. वी हैव टू यूज पार्टिसिपल टू make this change. First present participle and second perfect participle. Remember, present participle and perfect participle, not the past participle, because we know that there are three participle: present, perfect and past. But we will not use the past participle. We will only use present participle and perfect participle to add two sentences to make one nominative absolute construction sentence. So now the question arises that how can we know? अभी हमें पता कैसे चलेगा? How can we know that we have to use present participle or perfect participle? So what happens? Present participle, when do we use present participle? You know the fact. We use present participle when work is done, it doesn't take too much time to finish. When after finishing one work, we move towards the another one immediately without taking time, then we have to use present participle. But if one work is totally finished and after finishing one work, we are starting for the next one, we will use perfect participle. तो आप जो है पार्टिसिपल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे. हम कब यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल? हम तभी यूज करते हैं जब हमारा दो काम एक साथ होता है या एक के एक्शन का रिएक्शन होता है. यानी जस्ट भूख लगी तो हमने खाना खाया या शेर को देखा तो भाग गए, यानी एक काम के तुरंत बाद दूसरा शुरू हो जाता है. इट डज नॉट टेक मच टाइम टू परफॉर्म द अदर वर्क. एंड दूसरा वो जो है परफेक्ट पार्टिसिपल, एक काम खत्म हो जाता है, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट वन. तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि हम कैसे जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे सेंटेंस में और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे. अच्छा, तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन टू एग्जांपल व्हिच आई विल शो यू, बट बिफोर दैट let me tell you how we are going to use this nominative absolute construction. अब यहाँ पे देखो, two sentences are here. The day dawned, the people went to the canal. Okay, two sentences. The day dawned, the people went to the canal. Day dawned, what is the meaning of this sentence? Day dawned, here we see the day, one subject, and second sentence the people. So our condition is fulfilled that in two sentences subject should be different. In first sentence the subject is the day and in second sentence the subject is the people. Okay, so first condition is fulfilled, and now we will see if there is causal relationship between these two sentences. Yes, there are. First, the day dawned, it means दिन उगा, है ना. Dawn means आपको पता है ना, भोर होता है. तो दिन उगा. The people went to the canal. लोग कनाल की तरफ गए या कनाल को गए. तो यहाँ पे this sentence is showing cause and another one is showing result. So second condition is also fulfilled. Understand? First condition was subject was different. Second condition, there should be a causal relationship between the two sentences. This condition is also fulfilled. Another third one, the sentence which is showing the cause, this part, something which we are going to change, this will happen in this sentence only. जो कुछ भी हम चेंज करेंगे इस पार्ट में होगा, इस पार्ट में कुछ नहीं होगा. जो कॉज दिखा रहा है, रिजल्ट दिखाने वाले सेंटेंस में वी आर नॉट गोइंग टू चेंज, ओनली द कॉज दिखाने वाले सेंटेंस में. अब देखिए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू. इस तरह के दो सेंटेंसेस अगर लिखे रहेंगे तो हम कैसे इसको चेंज करेंगे. पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द सेंटेंस और द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट. इट मीन्स सेंटेंस को सबसे पहले हमें फ्री करना है.
फ्री करने के लिए पहले हम सेंटेंस को सब्जेक्ट को फ्री करना है, नॉट सेंटेंस। सब्जेक्ट को फ्री करने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है। वी विल हैव टू राइट द सब्जेक्ट फर्स्ट। इस सब्जेक्ट को लिखने के बाद वी सी दैट वी हैव डॉन्ड। डॉन्ट इज फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अभी तक डॉन का मतलब होता है भोर, लेकिन डॉन्ट में अगर डॉन्ट एक वर्ब का रूप रह रहा है, मतलब दिन उगा, है ना। डॉन जो है, अगर हम सिर्फ डॉन बोले, DAWN, डॉन का मतलब होता है भोर, तो ये नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे डॉन्ट जो है ये एक जो है मतलब दिखा रहा है कि दिन उग गया, यानी ये वर्ब का रूप ले रहा है, ठीक है। सो द डे डॉन्ट, दिन उगा, ये वर्ब है। तो इस वर्ब को हम क्या करेंगे, ये सेकंड पार्ट में आप देखिए, डॉन डॉन डॉन्ड, अगर हम वर्ब के रूप में ले तो ये सेकंड पार्ट ऑफ द वर्ब है, यानी पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट को सबसे पहले हमने एब्सोल्यूट कर दिया, लेकिन अभी हमें ये देखना है कि इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे या परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए, दिन उगा, लोग जो है कनाल की तरफ गए, तो ये दिखा रहा है कि एक काम होने के बाद दूसरे काम होने में टाइम लगा। दिन उगा, तुरंत लोग तो नहीं भागे ना, दे टुक टाइम टू गो टू द कनाल। तो इट शोज दैट देयर इज अ बिग टाइम डिफरेंसेस बिटवीन द टू sentence. There's a big time gap. So what we'll do, we know that we have to use perfect participle to combine these two sentences. So यहाँ पे donned, third form is also donned, DAWNAD. तो what we'll do that, अब आपको पता है perfect participle पे having के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट करेंगे, यानी सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट को लिखने के बाद सब्जेक्ट में अगर फाइनाइट वर्ब है तो सब्जेक्ट जो है उससे बन जाता है, लेकिन अभी हम इसको हैविंग डोंट करके परफेक्ट पार्टिसिपल बना देंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल बना देंगे तो ये हमारा जो सब्जेक्ट पार्ट है ये फ्री हो गया। नाउ इट हैज बिकम फ्री, इट हैज नथिंग टू डू विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब बाकी के सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, अब ये फ्री हो गया। सो हैविंग डोंट, द डे हैविंग डोंट, नाउ विल पुट द कॉमा, और अगर बाद में इसके बाद कुछ सेंटेंस है तो हम लिखेंगे फिर कॉमा रखेंगे, लेकिन कुछ नहीं है तो हम सिर्फ कॉमा डालेंगे। एंड देन we'll write the second sentence as usual without changing, we are going to add the second sentence as usual. अब जो है सेकेंड वाला सेंटेंस as usual हम लिख देंगे without any changes। इसको हमने जोड़ दिया तो ये हो गया, the day having dawned the people went to the canal। अब हमारे पास एक है फाइनाइट वर्ब went, क्योंकि जब हम कोई भी तरीका अपना के सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। एंड दिस फाइनाइट वर्ब डोंट, इसको हमने हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा के इसको बना दिया परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, अब हमारा ये जुड़ गया और हमारा ये सब्जेक्ट जो है इट हैज बिकम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इट हैज बिकम फ्री। अभी दूसरा देखो, सेकेंड सेंटेंस में द वेदर वॉज फाइन, वी एंजॉयड द वॉक। अंडरस्टैंड, मौसम बहुत अच्छा था और हमने वॉक किया। तो सेकेंड वाला जो सेंटेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी दैट ये मौसम बहुत अच्छा था तो हमने एंजॉय किया। एक तो हमें लग रहा है कि काम जो है भाई मौसम अच्छा था तो हम निकल पड़े, तो अब इसमें क्या करना है, आपको जब भी फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो कॉज दिखा रहा है उस कॉज वाले सेंटेंस में अगर आपका टू बी वर्ब आता है, टू बी वर्ब क्या होता है बेटा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है, टू बी वर्ब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। तो इफ द सेंटेंस showing cause has this to be verb yani was, what we'll do that will change this was into being। इस was को हम being में change कर देंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमें पता है कि हम being लगाते हैं, है ना, being यूज करते हैं। जैसे
अब देखो सेंटेंस जब प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो सब्जेक्ट बराबर होता है तो उसमें हम कहते हैं कि रवि वॉज हंग्री, ही एट फूड। तो बीइंग हंग्री रवि एट फूड, ऐसा है ना। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट अलग अलग है, सब्जेक्ट एक नहीं है, और इसमें सब्जेक्ट को हमें जो है एब्सोल्यूट करना होता है। तो एब्सोल्यूट करने के लिए व्हाट विल राइट, वी विल राइट द फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे, एंड देन ये जो वॉज है इट विल चेंज इनटू बीइंग। बीइंग लिखने के बाद अब हमारा जो बाकी बचा हुआ है फाइन, उसको लिख देंगे, एंड देन विल राइट अ कॉमा, और सेकेंड वाला सेंटेंस ऐसे ही जोड़ देंगे। समझ में आ गया आपको। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आपके सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वेयर आता है, व्हाट विल डू, दैट विल यूज बीइंग, BEING। इसको जो है बीइंग लगा के हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर देंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद बीइंग लिखेंगे, फिर बाकी का जो है बचा हुआ भाग लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, और फिर हम दूसरे सेंटेंस को उसी तरह जोड़ देंगे। ठीक है। अच्छा, अभी अब देखते हैं कि और भी कई एग्जाम्पल देके हम कैसे इसको करते हैं। सो आई हैव रिटन फ्यू सेंटेंसेस टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन वी ऐड two or more than two sentences by using nominative absolute construction. Let's see the first example. The agreement was signed, all were satisfied. Okay, now we see that this part, you know, the sentence which is telling us the cause, this sentence is in passive voice because the agreement was signed, यानी agreement को sign किया गया है ना। तो अब ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है, तो इस सेंटेंस को जब ये पैसिव वॉइस में है, ध्यान दो बच्चों, तो हम क्या करेंगे कि पहले वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में है जो कारण दिखा रहा है। तो बहुत से बच्चे, यू नो, मेनी स्टूडेंट्स, दे हैव नो आइडिया, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट when the sentence is in passive voice, they actually don't identify that the sentence is in passive voice. So how can they identify that actually the sentence is in passive voice? What they have to do is, ये देखो agreement subject के बाद जो है was signed है, यहाँ पे was signed जो है बेटा, ये वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म है, was signed। तो जब आपके इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद थर्ड फॉर्म आता है तो हम समझ जाते हैं कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। हिंदी मीनिंग करिए तो एग्रीमेंट को साइन किया गया, है ना। अगर यहाँ पे सेकेंड फॉर्म होता, मतलब एग्रीमेंट साइन किया, तो यहाँ पे हम वॉज नहीं लगाते। अब इसको देखो एक्टिव वॉइस में अगर हम करें तो एग्रीमेंट वॉज साइंड को एक्टिव वॉइस में चेंज करके देख लो, आपका पैसिव वॉइस आ जाता है। एक्टिव वॉइस कैसे, दे साइंड द एग्रीमेंट, है ना, हम किसी की बात कर रहे हैं कि दे साइंड द एग्रीमेंट। अब इसको पैसिव में करें कि एग्रीमेंट वॉज साइन, उन्होंने एग्रीमेंट को साइन किया, एग्रीमेंट को साइन किया गया, है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। एंड सेकेंड सेंटेंस जो है ऑल वर सेटिस्फाइड, ये ऐसी एक्टिव वॉइस में। तो जब आपका सेंटेंस, यानी द सेंटेंस विच इज शोइंग द कॉज, दैट सेंटेंस, दैट पार्ट इज इफ इन पैसिव वॉइस, व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द सब्जेक्ट, द एग्रीमेंट। अब इसको हमें एब्सोल्यूट करना है तो हम लिखेंगे द एग्रीमेंट। अब यहाँ पे जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और वॉज, यानी पैसिव वॉइस में है, तो हम यहाँ पे करेंगे हैविंग बीन लगा देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा द एग्रीमेंट हैविंग बीन साइंड। अब यहाँ पे वॉज हमारा हट गया, ये फाइनाइट वर्ब हट गया, ठीक है। We have removed this finite verb and in place of finite verb we have inserted this non-finite verb, and that too in passive voice. So the agreement having been signed, है ना, the agreement having been, भाई जब perfect participle passive voice में होता है तो आप having been लगाते हैं ना, तो इसी तरह पहले तो आप subject को absolute करेंगे, यानी इसका कोई मतलब नहीं है इस भाग से, तो लेकिन हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा द एग्रीमेंट, उसके बाद वॉज जो है
उसको हमने हटा दिया और उसकी जगह पे हमने लिखा हैविंग बीन साइंड, और फिर हमने दूसरे सेंटेंस को यहाँ पे कॉमा लगा के पूरी तरह जोड़ दिया. वी हैव एडेड द सेकेंड सेंटेंस. तो हमारा बन गया द एग्रीमेंट हैविंग बीन साइंड ऑल वर सैटिस्फाइड. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल. द फॉग वॉज वेरी डेंस. फॉग वॉज वेरी डेंस. कोहरा जो है बहुत ही गहरा था. नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट. कोई भी जो है, नो वन कुड सी हिज वे, कोई भी जो है रास्ता जो है कुड सी थ्रू द स्ट्रीट. अब रास्ता कोई भी व्यक्ति नहीं देख सका क्योंकि कोहरा जो है बहुत ही डेंस था. अभी ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सिंपल सा सेंटेंस है. लेकिन यहाँ पर जो है ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है और यहाँ पे ये वॉज आया है ना. तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके सिंपल सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, आई, सेंटेंस पैसिव वॉइस में ना हो लेकिन एक्टिव में हो और इज, एम, आर, वॉज, आई, तो हम इसे बीइंग में चेंज कर देंगे. BEING, बीइंग. ओके, हम इसे बीइंग में चेंज करेंगे, लेकिन इसके पहले में सब्जेक्ट लिखना है. तो ये हो जाएगा द फॉग बीइंग वेरी डेंस. द फॉग बीइंग वेरी डेंस. नाउ we'll put a comma, and now what we'll do, that we'll add the second part of the sentence without changing it a bit. We're not going to change it. We'll write the fog being very, was को हमने हटा दिया. ठीक है, ये finite verb था. The fog being very dense, no one could see his way through the street. Now let's see the third example. The town was well stocked with provisions. The town was well stocked with provisions. यानी जो टाउन था उसमें जो है प्रोविजंस यानी सारी उपलब्धियां, सारी सुविधाएं जो थी वो भरा हुआ था कस्बे में. द टाउन वॉज वेल स्टॉक्ड विथ प्रोविजन. अगेन वी सी दैट दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, है ना. ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है. द टाउन वॉज वेल स्टॉक्ड, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वॉज वर लिखने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो ये पैसिव वॉइस में. अब इसको देखो, हम एक्टिव वॉइस में अगर करें, द टाउन वॉज वेल स्टॉक्ड विथ प्रोविजन, या हम एक सेंटेंस में सब्जेक्ट लगा के हम कहते हैं दे स्टॉक्ड द टाउन विथ प्रोविजन. ये देखो एक्टिव वॉइस बन गया. उन्होंने क्या किया कि प्रोविजन से पूरा कस्बा भर दिया, या पूरा कस्बा प्रोविजन से भर दिया गया. ये पैसिव वॉइस में. तो अब जब सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस तो हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे द टाउन, एंड वॉज को हटा के हम लिखेंगे द टाउन हैविंग बीन वेल स्टॉक्ड विथ प्रोविजन. द टाउन हैविंग बीन वेल स्टॉक्ड विथ प्रोविजन. एंड सेकेंड सेंटेंस फिर देखो, यहाँ पे हमने 3 सेंटेंस लिया. आई हैव टेकन 3 sentences. The guns were well supplied with ammunition. अब जो है this sentence is also, यानी guns जो है well supplied with ammunitions. Ammunitions means शस्त्र, यानी बंदूक जो थी वो भी शस्त्रों से भर दी गई. तो this sentence is also in passive voice. What we'll do, हम इसको फिर sentence लिखेंगे, यानी sentence का subject लिखेंगे और well वर को हटा के यहाँ पे फिर हैविंग बीन कर देंगे हम. ठीक है, तो अब हो गया द टाउन हैविंग बीन स्टॉक्ड विथ प्रोविजन, द गन्स हैविंग बीन सप्लाइड विथ अम्यूनिशंस. अब यहाँ पे देखो द एनिमी वर फोर्स्ड टू रेज द सीज. अब जो है दुश्मनों को घेरा उठाना पड़ा. तो सेकंड जो ये वाला जो सेंटेंस है हम क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे थर्ड वाला, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो हमें हैविंग बीन लगाना है सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट करने के बाद. द टाउन हैविंग बीन वेल स्टॉक्ड विथ प्रोविजन, द गन्स हैविंग बीन सप्लाइड विथ एम्यूनिशंस, द एनिमी वर फोर्स्ड टू रेज द सीज. ये हमारा जुड़ गया. नाउ लेट्स सी फोर्थ वन.
The captain was mounted on an inferior horse. The captain was mounted on an inferior horse. Captain was mounted. अब यहाँ पे देखो क्या है, Captain was mounted on an inferior horse. Was mounted जो है फिर हमारा passive voice में है. कैप्टन को जो है एक इंफीरियर घोड़े की पीठ पर जो है मतलब बैठाया गया. कैप्टन वॉज माउंटेड. माउंटेड मतलब उसको उठाया गया, बैठाया गया. माउंटेन क्या होता है, पहाड़ होता है, तो माउंटेड मीन्स बैठाया गया. तो ही वॉज मेड टू सिट ऑन एन इंफीरियर हॉर्स. ये वाला सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है. दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं. ही वॉज बैडली आर्म्ड. ये वाला सेंटेंस नॉर्मल है, तो यहाँ पे हम इसको जो है वर्ब है, फाइनाइट वर्ब को हटा के वॉज है तो बीइंग करेंगे. यहाँ पे हैविंग बीन लगाएंगे. द कैप्टन लिखने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सेंटेंस, उसके बाद हम वॉज माउंटेड की जगह वॉज को हटा देंगे, हैविंग बीन करेंगे यहाँ पे. ठीक है. So the captain having been mounted on an inferior horse. अब ही तो हमें लिखना नहीं है क्योंकि कैप्टन ऑलरेडी हमने लिखा है. दूसरे सेंटेंस में ही को नहीं लिखेंगे और वॉज को भी नहीं लिखेंगे, तो वॉज की जगह हम बीइंग कर देंगे. ठीक है. तो द कैप्टन हैविंग बीन माउंटेड ऑन एन इंफीरियर हॉर्स, बीइंग बैडली आर्म्ड, सॉरी being badly armed. ठीक है, ही तो लिखेंगे ना. being badly armed, his opponent had thus a good chance of defeating him. और थर्ड वाला सेंटेंस जो है हम उसी तरह लिख देंगे. अब देखो यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट करना है, तो ही को हम हटाएंगे नहीं. हमने गलत आपको बताया कि ही को हटाना है, क्योंकि चूंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट करना है, तो ही को हम रहने देंगे. अब यहाँ पे हमारा बन गया द कैप्टन having been mounted on an inferior horse, he being badly armed, his opponent had thus a good chance of defeating him. ठीक है. या फिर आप एक काम कर सकते हैं, एंड लगा के आप इसको जोड़ सकते हैं. द कैप्टन हैविंग बीन माउंटेड ऑन एन inferior horse and he being badly armed, his opponent had thus a good chance of defeating him. इस तरह लिख सकते हैं. थर्ड सेंटेंस देखते हैं, सॉरी फिफ्थ वाला. The match was over, everyone rushed to the gate. अब इस सेंटेंस में देखो, ये सिंपल सेंटेंस एक एक्टिव वॉइस की है, तो हम ये इस पे क्या करेंगे, द मैच यानी पहले सब्जेक्ट लिखेंगे एंड देन वॉज की जगह हम बीइंग लिखेंगे. The match being over, अब जो है सेकेंड सेंटेंस विल एड everyone rushed towards to the gate. Okay, I hope you understood it well. If you have some problem, please write in the comment box so that I can understand that how I have taught today. So if you like my video, please share and subscribe it, and thank you so much.